Hello everyone. So today we are going to do mechanical properties of fluids. In last chapter we did mechanical properties of solids, right? So in this chapter we are going to look at fluids. So first of all, what is fluids? Fluids क्या है? So we generally denote gases and liquids as fluids as they can flow, and they have different properties as compared to uh, solids, right? Like solid have definite shape or definite volume, but fluids do not have that, right? Whereas we can take example of gas, whatever however big or small container you give, gas will fit in it. Like gas will make its value volume and shape according to it. Similarly, like water, it can change its shape like it. ठीक है. So in previous chapter we have learned कि how can we change the shape of solid, like by stress, and the change is known as strain, right? So in this chapter we are going to learn similar things for fluids, right? So fluids में क्या होता है, हमारे जैसे स्ट्रेस देखा था हमने किस में, सॉलिड में, वैसे ही प्रेशर होता है फ्लूइड्स में. सो प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर क्या होता है, हमने जैसे मैं लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, स्ट्रेस इज प्रेशर. जैसे सिंपल वर्ड में हम नहीं बोलते बहुत स्ट्रेस है, यानी बहुत प्रेशर है. अगर फॉर एग्जांपल पढ़ने का है या किसी और चीज़ का है, या तो हम, तो क्या था स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया. सो हियर प्रेशर इज सिमिलर, फोर्स अपॉन एरिया. Now why force also depends on area? For example, you are applying force of 1 Newton, ठीक है, 1 Newton, and your area is this huge, and the another one is, let's take this one, just a second, this much, in which the force will apply more. Here the force will spread out, right? So it would be less. For example, in simple language, if we say, if we have 100 students and this is assembly hall, this is your classroom, for example. In assembly hall they can sit like with a good space, but when we have to fit 100 students in one class, it will be a chaos, right? Similarly, area also depends when we are talking about force. So in simple language, pressure is force upon area, ठीक है. Pressure average is simply force upon area. But when you talk about pressure, pressure is del F by del A. F over here denotes to force and A over here denotes to area. Now limit del A tends to 0. ठीक है. Now one more thing we are going to learn in this, that is your, okay, that is your density. Density we have, right? What is density? Basically density is your mass upon volume. So density का क्या formula is mass upon volume. Its SI unit will be kg per meter cube. We can talk about dimensional formula, it would be m1 l minus 3. ठीक है. हम इसका भूल गए थे, प्रेशर का. प्रेशर का क्या होगा, इट वुड बी सेम एज स्ट्रेस, दैट इज m1. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, l minus 1 t minus 1, or 2 mass into acceleration, so t minus 2. ठीक है. This is its dimensional formula. Dimensional formula is clear or I have to explain? Okay, let me explain it just. Pressure is force upon area. We can write it as mass into acceleration, area meter square. This got cut. m1 l minus 1 t minus 2. ठीक है. Is it clear? All right, so let's move further.
Okay. Next is your Pascal's law. What does Pascal's law state? Okay, let me read line by line to make it more clear. Now, the French scientist Blaise Pascal observed that the pressure in a fluid at rest is the same at all points if they are at the same height. उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ली. If we are applying like for example this is our height, this much is height, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर वो रेस्ट पे है तो सभी पॉइंट पे सेम प्रेशर लगेगा. क्या लगेगा? सेम प्रेशर. एंड दिस फैक्ट मे बी डेमोन्स्ट्रेट इन अ सिंपल वे. राइट नाउ एक एलिमेंट है, हम इधर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल in a tumbler filled of water we have kept like this, right? Something like this. Okay, now this element, for example, let us name it A, B, C, D, E, F. Alright, now this is a right angle prism. In principle, this prismatic element is very small so that every part of it can be considered at the same depth from the liquid surface area. Here you can see same depth. Okay, depth here also you can see. Right, this, right or not? Am I correct? Yes. Now, therefore, the effect of the gravity is the same at all these points, but for clarity, we have enlarged this element. The forces on this element are those exerted by the rest of the fluids, and they must be normal to the surfaces of the element discussed above. तो प्रेशर इधर से फॉर एग्जाम्पल फोर्स ए लग रहा है, फोर्स बी लग रहा है, फोर्स सी लग रहा है, तो इसका जो प्रेशर होगा, मतलब हम एरिया सेम होगा और फोर्स भी सेम होगा. एफ ए बाई एरिया ऑफ ए वुड बी इक्वल टू एफ बी ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी. सो ये क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी. सो दिस इज नथिंग बट पास्कल्स लॉ कि अगर वो सेम हाइट पे कोई चीज़ हो तो सभी पॉइंट पे सेम टाइप का क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा. ठीक है. ओके, वन मोर फॉर्मूला इज देयर. बाय इक्विलिब्रियम वी कैन राइट एफ बी, force of B side, sin theta is equal to force of C side, and also force of B side cos theta is equal to force of A side. This simply because it is a right angle triangle, this is force B, right? What is sin theta? Sin theta is nothing but opposite upon hypotenuse. For example, this is our angle, so opposite this upon hypotenuse, so FC by FB. Okay, if we take cos theta is adjacent, so FA by FB, right? Is this easy? Easy, right? Similarly we can write for area. अगर एरिया उधर हो तो दोनों जगह एरिया कर दो. सिंपल. ओके, लेकिन अगर हाइट डेप्थ वो डिफरेंट है तो वेरिएशन आता है. अगर पानी के अंदर कोई चीज़ है और उसकी डेप्थ डिफरेंट है तो वेरिएशन आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक वन एग्जाम्पल. दिस इज आर बीकर और उसके अंदर कोई एक और बीकर है. तो ये जो है उसका mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इधर ऐसे है, फिर इधर से आ रहा है फोर्स,
इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये जो है उसकी हाइट है। ठीक है, तो एक हमारे पास एक प्रेशर है, pressure from the top, that let us take it as P1A fluid pressure, and from the bottom as P2A, that we will get as force. ओके, P1 P2, लेकिन हमने फोर्स अपन एरिया को इधर ले लिया है। अगर हम करें P2 माइनस P1 और कॉमन ले ले एरिया को, तो हमें मिलेगा mg। ठीक है, और वी कैन राइट P2 माइनस P1 हमको मिलेगा mgh, सॉरी pgh, दैट इज योर डेंसिटी इंटू g इंटू h। कैसे आया, लेट मी सी, mg है, अगर उसे हम डिवाइड कर दे a से, हमारा डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ बाय लेंथ को दोनों जगह, सो डेंसिटी इंटू जी इंटू एल, और वी कैन से एच। एल इज लेंथ, दैट इज दैट कैन बी ऑल्सो एच। easy to understand. So by this P2 minus P1, what we are getting, P2 minus P1 is equal to this. So let us keep one of them here, that is for example P2, that is final, that will be equal to P of A plus PGH. Easy, right? फिर है हमारा गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर यानी क्या, नाउ द प्रेशर P1 at depth below the surface of a liquid open to this atmosphere is greater than which atmosphere, then the atmosphere pressure by an amount PGH. Now the excess pressure is nothing but P minus P of A, that is excess मतलब बड़ा हुआ at depth H। तो ये जो excess प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर, जो बड़ा है। ठीक है, ठीक है, गेटिंग दिस, ऑलराइट। सेकेंड है हमारा हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स मतलब क्या। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ऐसा कोई वेसल है, जो वाटर लेवल आप देख सकते हो सभी का एक लेवल पे है। 3 वेसल A B C, हमने 3 वेसल ले लिए, फॉर एग्जाम्पल A B एंड C। These are of different shapes, aren't they? They are. They are connected to the bottom by a horizontal pipe. For example, this is your horizontal pipe. Now, on filling the water level in the 3 vessels is the same, though they hold different amount of water. So this, why? Because of what are they like this? So this is because they water at the bottom has the same pressure below each section. यहाँ पे जो प्रेशर है that is equal to pressure over here, and that is equal to pressure of B. इतना समझ में आया, इसलिए तीनों की जो लेवल है that is equal, right? क्योंकि सभी जगह नीचे प्रेशर इक्वल है। इजी, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। क्या है दोनों वो जान लेते हैं। राइट, now the pressure of the atmosphere at any point is equal to the weight of the column of air per of unit cross sectional area extending from that point to the top of the atmosphere. So pressure या तो atmospheric pressure क्या है कि फॉर एग्जांपल इधर मुझे ये पॉइंट का atmospheric pressure जानना है,
तो मैं यहाँ से लेके ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहाँ का एयर कंटेंट हम जो कॉलम ऑफ एयर है उसका वेट क्या होता है ना, उसे हम बोलते हैं एयर pressure, atmospheric pressure, sorry. So at sea level we are having it as 1 atm, that is your 1 atmospheric pressure, that is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal, Newton meter per second, right? Pascal. So Italian scientist Evangelista Torrisella, ठीक है, sorry if I had made any pronunciation mistake, devised for the first time a method for measuring atmospheric pressure. A long glass tube closed at one end and filled with mercury is inserted into a trough of mercury. कैसे? Let me explain you all. जैसे कि ये एक बाल है, फिर यहाँ से पूरी बड़ी सी ऐसे ली है, तो एट लास्ट उनको क्या देखने को मिला कि जो प्रेशर है P of A that would be equal to density into G into H, ठीक है, जहाँ पे P is density of mercury, H is height of mercury column, right? Getting this much? तो ये उन्हें लास्ट में देखने को मिला था. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज़ योर हाइड्रोलिक मशीन्स. हाइड्रोलिक मशीन्स यानी क्या? नाउ लेट अस कंसिडर व्हाट हैपन्स व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल. अभी हम प्रेशर को चेंज कर रहे थे. पहले हमने जो वो 3 एग्जांपल्स दिखे थे वहाँ पे क्या था, पानी सेम वो उधर था, हाइट सेम थी, लेकिन अब हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं. तो कभी भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ना हम कोई भी पॉइंट पे, तो जो फ्लूइड होता है ना दैट गेट्स ट्रांसमिटेड, इट इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में इक्वली ही ट्रांसमिट होता है. नाउ दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ and it has many applications in our daily life. ठीक है. The number of devices like hydraulic lift, then hydraulic brakes, they are based on Pascal's law. Now fluids are used for transmitting pressure, like in hydraulic press, we can say hydraulic lift brakes. Hydraulic यानी fluid use कर रहे हैं like water, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके बुक का ही है. यहाँ से हम प्रेशर डालते हैं तो जो पूरी हमारी कार इधर खड़ी थी वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर है ना वो सभी जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा. ठीक है, इट वुड बी ट्रांसमिटेड एवरीवेयर इक्वली. तो क्या उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो P होगा दैट वुड, फॉर एग्जांपल, सॉरी माय हैंडराइटिंग, प्रेशर विल बी इक्वल टू F1 by A1. Can you write F2 is equals to PA2? If we write P is equals to A2 by, I'm so sorry, F by A2. इन फ्लो मैनी टाइम्स आई जस्ट स्पीक. तो यहाँ पे P की जगह क्या मैं F1 by A1 लिख सकती हूँ. सो F2 इज इक्वल्स टू F1 by A1 इंटू A2. नहीं दिख रहा क्या? F2 इक्वल टू F1 A2 by A1. ठीक है. नाउ द प्लेटफॉर्म कैन बी मूव्ड अप और डाउन, जो हमने अभी उधर देखा उसमें. नाउ thus the applied force has been increased by a factor of A2 by A1. ठीक है, एंड दिस फैक्टर इज अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ डिवाइस. अब एरिया जो इसका जो होगा आंसर उससे वो बड़ा है, ये
कम हुआ, ठीक है, गेटिंग इट। पहले फॉर एग्जांपल एरिया A1 था, अब वो A2 हो गया, तो जिसके कारण हाइड्रोलिक लिफ्ट में वो थोड़ी जो थी कार वो ऊपर आ गई है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट और टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रीमलाइन। ओके देयर इज streamline flow. Now so far we have studied fluids at rest position. Now let's see in motion. Which motion they do follow? Streamline flow. Now the path taken by a fluid particle under a steady flow is a streamline. Streamline यानी ऐसे ऐसे curve में. You can say like this, little bit change by this. ऐसे वो डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं जाते, थोड़ा कर्व करके, जैसे हम वाटर कैसे ड्रॉ करते हैं अगर पानी हमें ड्रॉ करना हो तो लाइक दिस, राइट। तो वैसे वो स्ट्रीम लाइन इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स लर्न अबाउट स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन तो ये पाथ ही हम बोलते हैं उसे। ठीक है, नाउ दी देयर इज सम रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेटेड टू इट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, लाइक द वाटर इज क्रॉसिंग अराउंड द इन लेट अस टेक मास ऑफ द बॉडी एज mr, मास ऑफ फ्लूइड, एरिया जहाँ पे वो फ्लो कर रहा है ar, इन टाइम लेट द टाइम बी इज डेल टी। ये सारे डेल ओके डेल में ही है, मतलब चेंज इन डेल ए डेल टी। ओके, एरिया एज इट इज। ठीक है, देन योर डेंसिटी PR AR VR del T will be equal to some another, like for example PQ, for example we have taken some other AQ VQ del T, ऐसा होगा। तो डेल टी कट हो गया कि नहीं, डेल टी एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल सेम, तो ये भी कट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या फॉर्मूला मिल रहा है? तो ये जो है ना वो पहले से है कि ये इक्वल होता है इसे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने तीन ऑब्जेक्ट अगर हम तीन ले लेते हैं तो भी ए वी ओके ए ऑफ पी वी ऑफ पी दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ आर वी ऑफ आर, दैट विल बी इक्वल टू ए ऑफ क्यू वी ऑफ क्यू। वी क्या है यहाँ पे? V is our speed. V is our speed and A is our area. ठीक है, getting this much? All right. Second is your turbulent. Steady flow is achieved at low flow speeds beyond a limiting value called a critical speed. This flow loses steadiness and becomes turbulent. कहीं से भी, like streams encountering rocks, small foamy whirlpool like regions like white water rapids are formed. ठीक है, तो मैं थोड़े दिखाती हूँ इसके लिए कैसे होता है स्टेडी। ओके, बट फिर अगर बीच में कुछ आ गया ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, फिर वो उधर से स्टेडी नहीं रहेगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यह वही है कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो स्टेडी नहीं रहेगा बल्कि वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ तक का रिकैप देख लेते हैं। और रेस्ट में पहले हमने जाना, फिर हम आए थे मोशन में क्या था? स्ट्रीमलाइन मोशन, स्टेडी हो तो
उसमें हमने क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा, दैट इज ए आर वी आर दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट ए क्यू वी क्यू। ठीक है, फिर हमने टर्बुलेंट देखा। टर्बुलेंट कब हो जाता है? जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन इट बिकम्स, इट चेंजेस द, स्टेडी नहीं रहता। So now is Bernoulli's principle. Sorry if I have made any mistake in pronunciation, but in simple, Bernoulli's principle states that as we move along a streamline, the sum of pressure, the kinetic energy per unit volume, that is your del v pv square by 2, and potential energy per unit volume, that is your pg phi, is a constant प्लस p। ठीक है, ये वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, पी वी स्क्वेयर, पी वी इज फॉर डेंसिटी, राइट। पी जी वाई हाफ एम वी स्क्वेयर था, तो एम वी स्क्वेयर और वो जो था उधर हमने ऐसे लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो द इक्वेशन इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, there is no fluid which have zero viscosity. So the above statement is true only approximately. The viscosity is like friction and converts the kinetic energy to heat energy. ठीक है, तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन था। क्या था? P प्लस पी वी स्क्वायर बाई 2 प्लस पी जी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, now next is speed of efflux Torricel's law। क्या है? let's know them। तो the word efflux means fluid outflow। Torricel's, ठीक है, the Torri है, I'm so sorry, Torricel's he discovered that the speed of efflux from one open tank is given by a formula identical to that of a freely falling body. For example, consider a tank containing a liquid of density P, rho, with a small hole in its side of height y, ठीक है, from the bottom, and the air above the liquid whose surface is at y2। ठीक है, at the pressure P from equation of continuity हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? ए आर वी आर, राइट, इज इक्वल्स टू, या तो हम लिख सकते हैं A1 V1, A1 V1, A2 V2। ठीक है, तो हम क्या V2 इधर रखते हैं। ठीक है, तो हम A1 बाई V1 बाई A2 लिख सकते हैं, right or not? If the cross sectional area of the tank A2 is much larger than the whole, A2 बहुत बड़ा है A1 से, then we may take a fluid to be approximately at a rest at the top, that is V2 will be 0, क्योंकि A1 की वैल्यू इज सो स्मॉल देन A2। टैंक तो बहुत बड़ा होगा लेकिन होल छोटा सा होगा, तो जो V2 होगा that will be merely equal to 0. So now by applying Bernoulli's equation at point 1 and 2 and nothing that at P1 we will get as PA, right? The atmospheric pressure we have from equation, right, that what was the equation? P plus kinetic energy plus, yes, potential energy. So P of A plus half of A square Pg y1, that is your H only, P plus Pg y2। इस तरह से V हमें क्या मिलता है? 2GH प्लस 2P माइनस PA बाई रो। ये रो है हमारा, ठीक है। डेंसिटी, ये हमें फॉर्मूला मिलता है।
ये जब हम सॉल्व करेंगे v को यहीं रखेंगे, ठीक है, ये जो v1 स्क्वायर है उसे यहीं रखेंगे और इस बाकी सब को इधर ले जाएगी और जो स्क्वायर है उसका रूट कर देंगे तो हमें ये फाइनल वैल्यू मिलती है। देख लीजिए एक बार आप शांति से। दिस इज द रियल, मतलब एट लास्ट व्हाट वी हैव टू गेट। अगर हमारा जो p है दैट इज सो ह्यूज देन p ऑफ a and 2gh may be ignored, then the speed of efflux is determined just like this much, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टोरिसेल्स लॉ, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूला स्ट्रीमलाइन में देखे। एक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, a1v1 इक्वल टू a2v2। फिर हमने क्या पढ़ा, pv स्क्वायर बाय 2 प्लस pgh वी विल गेट एज कांस्टेंट। फिर अभी हमने कहा क्या पढ़ा, v1 इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। तो अभी हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं, दैट इज डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट यानी कि it is the force that acts on a body such as aeroplane wing, a hydrofoil or a spinning ball by virtue of its motion through a fluid. In many games such as cricket, tennis, baseball, many games or golf, we notice that the spinning ball deviates from a parabolic trajectory motion, right? तो थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बॉल मूविंग विदाउट अ स्पिन। सिंपल बॉल फेंका है, स्पिन नहीं फेंका, तो क्या होगा कि जो स्ट्रीम लाइन है उसकी, वो नॉन स्पिनिंग बॉल की, दैट वुड बी मूविंग रिलेटिव टू अ फ्लूइड फ्रॉम अ सिमेट्री ऑफ सिम लाइन्स। इट इज़ क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज एयर, इधर फ्लूइड क्या होगी हमारा, एयर, above and below the ball at corresponding points is the same, resulting in zero pressure difference. ऊपर नीचे सेम एयर होगी। The air therefore exerts no upward or downward force on ball when there is no spin. But when there is spin, when ball is spin, a ball which is spinning drags air along with it. If the surface is rough, more air will be dragged, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इससे हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या है कि जो डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। वो खुद के साथ एयर को भी लेके जाता है, और ज़्यादा रफ होता है तो और लिखो और रफ हो, ठीक है। एरोफिल्स और एरोफॉयल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, ठीक है। एक सॉलिड होता है एरोफॉयल, which is solid piece shaped to provide upward dynamic lift when it moves horizontally through air. The cross section of the wind of aeroplane looks somewhat like the aerofoil shown, right or not? It is something like this type, क्योंकि जब आता है तब वो डायरेक्टली ऐसे जा सके, जो विंड कोई फ्रिक्शन ना लगे, राइट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज इजी। विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन अंडर वाटर। वाटर के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, हाँ जी। इस जैसे हम यहाँ पे कोई अगर मोशन होता है तो वैसे हम जो पानी होता है उसके अंदर भी मोशन लगता है, दैट इज योर विस्कोसिटी, राइट। गेटिंग दिस? तो काफ़ी बार विस्कोसिटी के कारण हमारा जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे हो तो फिर वो ऐसे हो जाता है, सिंपली, राइट। गेटिंग दिस? सो जो पोर्शन ऑफ लिक्विड होता है तो जो इधर क्या लगता है, हमारा शेयर स्ट्रेन लगता है। शेयर स्ट्रेन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर लेंथ। Since the strain is in a following fluid increases with time continuously, unlike a solid, here the stress is found experimentally to depend on rate of change of strain or strain rate, ठीक है।
तो यहाँ पे डेल टी पी आ जाएगा, और वी कैन से वी बाई एल। डेल एक्स बाई डेल टी क्या है हमारा, that is nothing but v by l. Now the coefficient of viscosity, that is pronounced eta, for a fluid is defined as the ratio of sharing stress to the strain rate. eta इसे बोलते हैं हम, इसे eta बोलते हैं. One is your f upon a, right? F upon a is your stress. Another is your v by l. So that is nothing but f into l v by a. ठीक है, ऑल राइट. इसे हम क्या बोलते हैं, ईटा, ईटा बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, स्टोक्स लॉ, लेट्स सी. तो एक जैसे कि एक बॉडी which falls through a fluid, it drags the layer of the fluid in contact with it. अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड के ऊपर गिरेगा तो वो अपने साथ एक लेयर है ना लेके जाएगा फ्लूइड का. ठीक है, ऐसा वो बोलता है हमारा स्टोक्स का लॉ. सो स्टोक्स लॉ स्टेट्स दैट द विस्कस ड्रैग फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, ऐसे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी. ये जो लेके जाता है ना, दैट वी कैन राइट जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए इंटू वी. ये उसका फॉर्मूला है. फिजिक्स इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज, यू विल फाइंड मेनी फॉर्मूलाज हियर. और एक फॉर्मूला से आप लिख सकते हो p माइनस सिग्मा इंटू ए क्यूब p minus sigma, sorry, I did ulta, 4 pi by 3 a cube into p minus g. तो यहाँ पे जो v ऑफ आपको t मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 2a स्क्वायर p माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा. ऐसे होता है ना ईटा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज आर ओके इक्वेशन वी डिड सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है, वेरी सिंपल. सरफेस पे जो भी प्रेशर आए, फोर्स आए, दैट इज योर सरफेस टेंशन. सो दिस surface possesses some additional energy. This phenomenon is known as surface tension. सरफेस पे क्या होता है, एडिशनल एनर्जी होती है, and it is concerned with only liquid or gases and do not have free surfaces. तो ये जो एनर्जी है वो क्या होता है, उसके जानने के लिए सरफेस एनर्जी हमें जानना पड़ेगा. A liquid stays together because of attraction between molecules, right? Now consider a molecule well inside a liquid. The intermolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. The attraction results in a negative potential energy for the molecule, which depends on the number of distribution of molecules around the chosen one. But the average potential energy of all the molecules is the same. This is supported by the fact that the take of a collection of such molecules and to disperse them far away from each other in order to evaporate or vaporize, the heat of evaporation required is quite large. For water it is 40 kilojoule per mole. एक और बात समझा देते हैं कि पास में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी, दूर जाने की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वो लोग तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी ना रिपेल कर रहे हैं. रिपेल होते तो पॉजिटिव होते, लेकिन इधर अट्रैक्ट कर रहे तो इसलिए वो नेगेटिव है. तो वेपर बनाने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वाटर के लिए वो एनर्जी क्या है, 40 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इतना समझ में आया. तो अभी हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन कैसे रिलेटेड है. कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज एसोसिएटेड विथ सरफेस ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिएशन ऑफ मोर सरफेस, कीपिंग अदर थिंग्स लाइक वॉल्यूम फिक्स्ड रिक्वायर्स
horizontal liquid film ending in bar free to slide the parallel guides. यानी कि suppose for example, let's take one example to make it easier. Suppose that we move the bar by a small distance d. देखते हैं जैसे कि ये है और थोड़ा हमने मूव किया, उसे इतना मूव किया d, पहले वो इधर तक था और फिर इतना हम आगे ले गए उसे, ठीक है। तो जो उसका इंटरनल फोर्स है, लेट्स टेक इट एज F. The work done by the applied force will be F into D, right? From conservation of energy, this is stored as additional energy in the film. If the surface energy of the film is S per unit area, surface energy we are taking as S, the extra area will be 2dl, ठीक है, 2dl होगी. So S, that is your surface energy, into 2dl, we will get as work, that is F into D. फोर्स लगा जिसके कारण वो डिस्प्लेस हुआ, कुछ वर्क लगा. और वी कैन राइट इट एज S इज इक्वल्स टू एफ डी बाई 2dl. डी डी कट हो जाएगा, दैट इज योर F बाई 2l, ठीक है. Now this quantity S is the magnitude of surface tension. It is equal to surface energy per unit area of the liquid interface and is also equal to force per unit length exerted on the force per unit length, ठीक है. तो अभी समझ में आया हमारा सरफेस टेंशन क्या है, दैट इज फोर्स अपॉन 2l, ठीक है. Okay, there are 2 points which you may keep in mind, or we can say 2 observations. देखिए, पहला तो कि surface tension is a force per unit length or surface energy per unit area acting in the plane of the interface between the plane of a liquid and any other substance. It is also the extra energy of molecules, ठीक है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये क्या है, इट्स लाइक अ रिकैप, हमने जो देखा अभी तक वो मैं बता रही हूँ. 2 चीज़ें मेन कि सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स बाई 2l, और एक्स्ट्रा और एनर्जी पर एरिया, या तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो. तो एट एनी पॉइंट ऑफ द इंटरफेस बिसाइड्स द बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड इमेजिन इक्वल एंड अपोजिट सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है. अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो सभी जगह पर डिफरेंट जगह देख सकते हो, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है. इतना समझ में आया. सो कैन आई मूव फर्दर? ओके, नेक्स्ट इज योर सरफेस टेंशन इन द लिक्विड एयर इंटरफेस. वो क्या है, लेट्स सी. So, for example, suppose the additional weight required, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं to make it simple. तो ये W है और हम वेट लगा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा S है तो वो हो जाएगा वेट अपॉन 2l, दैट विल बी इक्वल टू mg बाई 2l, mg बाई 2l, where m is the extra mass and l is the length of the plate H. द सबस्क्रिप्ट हम है ना, देखो S सिर्फ S नहीं लिखते, इधर लिखते हैं LA. तो ये क्या एम्फसाइज करता है कि लिक्विड एयर इंटरफेस टेंशन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है. लिक्विड और जो हमने वो देखा था वो फॉर्मूला में, तो लिक्विड भी था और एयर भी थे, दोनों चीज़ें थे. तो हम क्या लिखेंगे, LA.
तो हो जाएगा W/2L, और वी कैन राइट इट एज mg/2L। तो ये W क्या है, इधर वर्क नहीं है। इफ इन फ्लो बाय मिस्टेक आई वुड हैव सेड वर्क, देन आई एम सो सॉरी, इट इज वेट। क्या है ये, वेट है। जो वेट हमने उधर पुट किया है वो वेट है W, दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, इट इज वेट। ऑलराइट, सॉरी अगर मैंने फॉर्म में बोल दिया होता तो सॉरी। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है वो देख लेते हैं हम ज़रा। जैसे कि हमारा ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉल है, तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो होगा वो हमारा होगा थीटा, दैट इज योर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जैसे कि वाटर ड्रॉप है, ठीक है, तो वहाँ से हमने ऐसे किया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऐसे हो और कुछ ऐसा टाइप का हो। तो यहाँ से जैसे कि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो, सॉरी नहीं हो रहा ठीक से, ऐसे, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये जो है SIA cos theta, that will be plus cos SL will be equal to cos, I'm so sorry, not cos, मैं फ्लो में cos LA cos theta plus SSL is equal to SA। यहाँ पे जो हमारा SSL है ना, that will be greater than SLA। ये SSLA क्या है, that is nothing but your interface। this is liquid to air, then solid to liquid, solid to air। ठीक है, this is nothing but your interfaces। so S, that is your surface tension to liquid to air cos theta plus surface solid to liquid is equal to solid surface tension solid to air। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों ले तो ये बड़े होंगे, अगर SL और LA ले तो भी ये, तो हमारा LA बड़ा होगा। ठीक है, लिक्विड टू एयर विल बी बिगर देन सॉलिड टू लिक्विड। ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट ड्रॉ करके हमें मिल जाएगा। तो सरफेस टेंशन लिक्विड टू एयर, सॉलिड टू लिक्विड, कैसे बड़ा कौन छोटा वो फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ड्रॉप्स एंड बबल्स। ड्रॉप्स बबल्स कैसे आ गया भाई इधर, बड़ा कन्फ्यूजन। देखो, जैसे कि कोई ड्रॉप आ रहा है ऑफ रेडियस R, ये हमारा ड्रॉप है ऑफ रेडियस R। हम तीन दे रहे हैं, एक हमारा पूरा ऐसा भरा हुआ है, दूसरा है ठीक है, दैट इज योर P of I, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, दिस इज ऑल्सो P of I, और ये भी सेम हम ले रहे हैं रेडियस R P of I, तीन केसेस। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम ले रहे हैं फॉर्मूला, तो 4πr प्लस डेल R होल स्क्वायर, 2πr होता है हमारा, उसका हमने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, 2πr का, दैट्स योर सर्कमफेरेंस, राइट, माइनस 4πr स्क्वायर इंटू स्क्वायर, लेकिन एक टाइप का स्क्वायर नहीं, लेकिन ये रिलेशन है, पूरा डेरिवेशन नहीं कोई फाइंड करेगा, तो ये याद रखना है आपको। सरफेस टेंशन लिक्विड टू एयर is equal to 8πr
del R सरफेस टेंशन लिक्विड टू एयर। ये हमने सॉल्व करके हमें ये मिला। ठीक है, सॉल्व जब हमने किया तो क्या मिलेगा, अब पहले 4πr स्क्वायर है -4πr स्क्वायर सीएम, और ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये इक्वल होगा। और यहाँ पे जो वर्क डन हमारा होगा, ये भी फॉर्मूला देख लो, पूछ सकते हैं। Pi और P1 माइनस P0 into 4πr square del R. We can also write Pi minus P0, or we can say P1 by P0 is equal to 2s liquid to air by R. ठीक है, ओके। नाउ जो भी बबल है ना, दैट डिफर्स फ्रॉम अ ड्रॉप एंड अ कैविटी। किसी पूरा होता है, कैविटी होता है। अगर हम देखें तो बबल अगर बीच में ऐसा हो कैविटी, तो इधर 4 हो जाएगा। तो दिस इज प्रोबेबली वाई यू हैव टू ब्लो अ हार्ड बट नॉट टू हार्ड इज फॉर्म ऑफ शॉप बबल। अ लिटल एक्स्ट्रा एयर इज नीडेड इनसाइड। ठीक है, अगर जगह अंदर हो तो 4 और ऐसा सब होता है। ठीक है, जब हम मैं क्वेश्चंस के साथ आऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, क्या चल रहा है नहीं पता चल रहा है। लेकिन अभी आप क्या करो, जो भी इक्वेशन है उसे मैं समझा तो रही हूँ, तो भी आप याद करने की कोशिश करो। बायो वाले याद नहीं रहता, याद रह जाएगा। दिस इज़ नॉट मैथ्स, राइट। फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा, then you can comment me below. I will bring a special video or short for it if the topic is more than short. ठीक है, मैथ्स वाले ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर बायो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैथ्स वालों को सब आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं। अगर मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी, सब कुछ करवाओगी, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक अप्लाई करना सीख गए तो दूसरा भूल जाओगे। तो पहले सारे फॉर्मूलाज आप याद रख लो, समझ लो, फिर हम एप्लीकेशन देख लेंगे उसे। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। अभी चैप्टर थोड़ा ही बाकी है। ओके, इक्वेशंस हमने देख ली हम। कैपिलरी राइज। हाँ, कैपिलरी राइज क्या है? द कैपिलरी इज, इट्स लाइक कॉनकेव. This means that there is a pressure difference between the two sides of the top surface, and that is given by like this: P1 minus P0 is 2s by R. That is equal to your 2s by a sec theta, and that is equal to 2s cos theta. हम sec theta को ऊपर लिख देंगे cos theta by a. ठीक है, thus the pressure of the water inside the tube, कोई ट्यूब है उसके अंदर अगर वाटर है, उसका जो that is just a meniscus यानी अगर आप देखोगे पानी तो ऐसे एक अपर meniscus जो ये स्कर्व टाइप होता है, वो एयर वाटर इंटरफेस हम बोलते हैं, जहाँ पे एयर और वाटर मिक्स होते हैं, लाइक जहाँ पे वो साथ में होते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Consider 2 points A and B. अगर आप वो कंसिडर कर, they must be in the same pressure, namely like P or not, you will get as HPG. Sorry, I wrote 2G. HPG is equals to P1, that is equal, sorry, PI, that is equal to P of A, where P is the density and H is called the capillary rise. देखो, मैं डेंसिटी को काफ़ी बार P से ही डिनोट कर देती हूँ. ठीक है, सो सॉरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड और इफ़ यू फील कन्फ्यूजन, देन आई एम सो सॉरी. Many time I just use P for saying density, right? So sorry for that, please bear. So इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि
P1 minus P0 is equal to H density gravity. What is your H? Capillary rise. That is equal to 2s cos theta by A. H आप लिख सकते हो as 2s into density gravity A. ठीक है. For example, if your A is 0.05, using the value of surface tension for water, let me derive one equation for water it is. ठीक है. हम H हमारा होगा 2s by density Ga 2 into इसका जो surface tension है of water is 0.73 10 raised to 3 into 9.8 into 5 into 10 raised to minus 4. 0.05 सेंटीमीटर है. अगर हमको मीटर में लेना हो तो ऐसा करेंगे. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.98 into 10 raised to minus 22 मीटर. दैट इज इक्वल टू 2.98 सेंटीमीटर. ठीक है. ये जो है ना उसका मिनिस्कस होता है वो दैट इज लाइक अ कॉनकेव. लेकिन जब आप मर्क्यूरी की बात कर रहे हो तो दैट इज कॉन्वेक्स टाइप ऑफ. वी हैड ना कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. आई होप यू ऑल रिमेंबर इट, राइट? गुड, यू ऑल रिमेंबर इट. क्लेवर. सो the surface of water is the capillary is concave. This means that there is a pressure difference between the two sides of top surface, and that is given by which formula? We have found 2s cos theta by A. PGA अगर हम cos theta नहीं लगा रहे तो PGA density. Thus, the pressure of the water inside the tube just at the meniscus is less than the atmospheric pressure. ठीक है. हमने ये मैंने बता दिया. 2 पॉइंट्स है A और B. तो कैसे लिखते हैं? That is your P of A plus HPG. Again I am saying P, just bear it please. PI is equals to P of A. ठीक है. So here are chapter ends. थोड़ा क्या रिविजन चाहिए चैप्टर का? समरी में दे दूँ एक बार. फ्लूइड मतलब क्या होता है? गैस और लिक्विड विच कैन फ्लो. ठीक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड. मैकेनिकल प्रॉपर्टी. सबसे पहले हमने प्रेशर के बारे में जाना. व्हाट इज़ प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. फोर्स अपॉन एरिया. फिर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है फ्री सरफेस में. ठीक है. गैस कंप्रेसिबल. आप कोई भी स्टेट पे इतना बड़ा या इसमें इतने छोटे में भी रख सकते हो. ठीक है. इतना याद है. फिर हमने क्या देखा था? हाँ, थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. 1 atm हमको कितना मिला था? 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल. फिर 1 बार, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज़, 10 raised to 5 पास्कल है. 1 टोर दैट इज़ योर 133 पास्कल. 1 millimeter of Hg that is your 1 torr or we can say 133 Pascal. ठीक है. Now Pascal's law, we have studied Pascal's law. वो क्या था? Pressure in a fluid at rest is same at all points if its height is same. ये पता है हमने एक कैसा किया था? ऐसा कुछ किया था ना हमने फाइंड करने के लिए कि सभी जगह सेम होता है, राइट? फिर हमने एक देखा था कि हम अगर ऐड कर क्या था? हाँ, बर्नौलीज प्रिंसिपल. डेंसिटी देन PV square by 2 that is your kinetic energy plus PG H और Y that is equal to your constant. ठीक है. फिर हमने देखा था ईटा के बारे में, राइट? 6 पाई क्या था वो? फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा AV, राइट? फिर जो हमने अभी देखा था, आई डोंट थिंक उसमें वापस मुझे कैपिलरी राइज था, ड्रॉप्स एंड बबल्स का था. ठीक है. वो तो अभी हमने किया ही. तो ये थोड़ा रिवीजन था चैप्टर का.
So thank you. If there is any other doubt, please comment below. I will be happy to solve your doubt. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.